اس سیشن میں ہم فکر اقبال کی روشنی میں شاہین کی زندگی سے کچھ مزید لائف لیسن لرن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کا کام پرواز کرنا ہے، شاہین کا کام بلند پروازی ہے، نئے نئے ہاریزونز کو ایکسپلور کرنا ہے، نئی نئی منازل طے کرنا ہے۔ تو تم شاہین ہو، اقبال کہتے ہیں تم شاہین ہو، تمہارا کام پرواز کرنا ہے، تمہارا کام نئے نئے افق تلاش کرنا ہے، تمہارا کام نئی نئی منازل کو کھوج کرنا ہے، نئے نئے شکار کرنا ہے، نئے نئے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے۔ تو تم پرواز جاری رکھو، اپنی پرواز کو محدود مت کرو۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، پرواز جاری رکھو، نئے نئے مقاصد پہ، اعلیٰ و ارفع مقاصد پہ کام جاری رکھو۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، زندگی میں رکنا نہیں ہے، زندگی میں تھمنا نہیں ہے، بلکہ پرواز جاری رکھنی ہے۔ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اے نوجوان، اے شاہین، اے اقبال کے شاہین، تیرے سامنے اور آسمان بھی ہیں، اور افق بھی ہیں، اور ٹارگٹس ہیں، اور گولز ہیں۔ حالات کے تناظر میں بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ کئی اور افق تیرے سامنے کھلیں گے۔ تو نے ڈرنا نہیں ہے، تو نے گھبرانا نہیں ہے، تو نے پرواز جاری رکھنی ہے، تو نے نئے نئے آسمانوں کی طرف، نئی نئی منازل کی طرف، نئے نئے مقاصد کی طرف بلند پروازی جاری رکھنی ہے۔ علامہ نئی نسل کو شاہین کی مثال دیتے ہوئے ہمت دلاتے ہیں، اور علامہ فرماتے ہیں، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ شاہین پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ اگر تم شاہین ہو تو تم نے تھکنا نہیں ہے، تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے گرنا نہیں ہے، تم نے پرواز جاری رکھنی ہے۔ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اگر تم انرجیٹک ہو، تم میں انرجی ہے، تم میں ایک زندگی کی حرارت موجود ہے، تو آپ گریں گے نہیں، آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ پردم ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے جم کے نہیں ٹھہر سکتی، بلکہ آپ اس مصیبت پہ قابو پا لیں گے، آپ اس پریشانی پہ قابو پا لیں گے، عمل کے ذریعے، انرجی کے ذریعے، پردم ہونے کے ذریعے، اور آپ نے ہمت جاری رکھنی ہے۔ تو شاہی کی مثال انہوں نے پردم ہونے کے لیے اس لیے دی، پردم ہونے کی مثال شاہین کی اس لیے دی کہ آپ جانتے ہوں گے، آپ میں سے بعض ساتھی جانتے ہوں گے، بعض ہمارے لسنرز اس بات سے آگاہ ہوں گے، واقف ہوں گے کہ شاہین ایک طویل عمر پاتا ہے۔ شاہین کی ایک جو ایوریج عمر ہے وہ 70 برس ہے، لیکن شاہین کی زندگی میں بھی ایک وقت آتا ہے جب اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے، جب اس میں صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جب اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو سرنڈر کر لے، یا تو تھک کر گر جائے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے، اور یا پھر بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے،
चेंज को एक्सेप्ट करे, चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप करे, अपने आप को ग्रो करे, अपने आप को पॉलिश करे। तो जो थक कर गिर जाए वो शाहीन नहीं है, जो हालात से घबरा जाए वो शाहीन नहीं है, जो डर जाए वो शाहीन नहीं है। शाहीन तो वो है जो मुकाबला करे, शाहीन तो वो है जो चेंज को एक्सेप्ट करे, शाहीन तो वो है जो डटा रहे। तो शाहीन क्या करता है, जब शाहीन 40 बरस का होता है तो उसकी बीक, उसकी चोंच थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, वो शिकार को सही ग्रिप नहीं कर पाती। शाहीन के पंजों में वो सलाहियत नहीं रहती, उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं, वो शिकार को उतने फोकस के से, उतनी पावर के साथ, उतनी एनर्जी के साथ ग्रिप नहीं कर सकता, ग्रैस्प नहीं कर सकता, उसको थाम नहीं सकता। शिकार करने में उसे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो शाहीन एक टफ डिसीजन लेता है, वो पहाड़ की चोटी पे चला जाता है, बहुत बुलंदी पे चला जाता है, और वो हालात के मुताबिक अपने आप को तैयार करने के लिए, आने वाले वक्तों से में सरवाइव करने के लिए, आने वाले वक्तों में अपनी शाहीनियत बरकरार रखने के लिए और अपनी काबिलियत को बरकरार रखने के लिए बड़ा बोल्ड स्टेप लेता है। वो अपने सारे नाखून उधेड़ देता है, अपने पर नोच लेता है और अपनी चोंच पत्थर पर मारकर तोड़ देता है, और वो इंतजार करता है कि उसके नए पर निकलते हैं, उसके नए बालों पर निकलते हैं, उसके नए पंजे निकलते हैं, नए नाखून ग्रो करते हैं, और उसकी नई चोंच डेवलप होती है, ग्रो करती है। इस प्रोसेस में 4 से 5 माह का एक टाइम गुजर जाता है, और उसके बाद वो फिर एक नई फ्लाइट लेता है, एक नए अज़्म के साथ, नई तवानाई के साथ, नई अज़्म हिम्मत के साथ वो अपनी बुलंद परवाज़ी जारी रखना शुरू कर देता है। तो अजीज़ान गिरामी, 21वीं सदी में आप देख रहे हैं कि कैरियर्स में, जॉब्स में, बिजनेस में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ओल्ड सिस्टम रिप्लेस हो रहा है, नई नई सलाहियतें हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं। जॉब में, एजुकेशन में, बिजनेस में हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली बाज़ लोग हिम्मत हार बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो एज ज़्यादा हो गई है, हमारी तो आदत में अब ये नहीं रहा। इवन यकीन कीजिए, आप हैरान होंगे कि एक जगह पे हम गैप एनालिसिस करने गए, तो मैंने एक साहब से कहा कि जनाब आप क्यों नहीं आप इसको एक्सेप्ट कर रहे चेंज को? तो उन्होंने क्लियर वाज़े आंसर दिया, उन्होंने कहा सर हम हड हराम हो गए। तो जो हड हराम होना है, जो हिम्मत हारना है, ये करगस का काम है, ये शाहीन का काम नहीं है। तो हम सब इकबाल के शाहीन हैं, ये देश इकबाल का है, इसका ख्वाब इकबाल ने देखा, हम सब ने इकबाल का शाहीन बनना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इकबाल के शाहीन बनेंगे और चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, नई स्किल्स को सीखेंगे एज पर चेंजिंग सिनेरियो, अपनी फैमिली के लिए, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए, उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए, अपने वतन को आगे लेके जाने के लिए, अपनी नेशन को आगे लेके जाने के लिए, और दुनिया में एज ए इंडिविजुअल पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए हम शाहीन की इस आदत को अडॉप्ट करेंगे कि हमने चेंज को एक्सेप्ट करना है। हमने चेंज को एक्सेप्ट करने में जो पेन है उसको उसको एब्जॉर्ब कर लेना है, उस पेन से गुजरना है, और उसके बाद जो एक प्लेयर का टाइम है वो इंशाल्लाह हमारा मुकद्दर बनेगा। तो इकबाल हमें ये कहते हैं कि जब हम में ये एनर्जी आ जाएगी, जब हम में उकाबी रूह आ जाएगी, जब हम में शाहीन की रूह आ जाएगी, शाहीन का सब मिजाज आ जाएगा, तो इकबाल कहते हैं
उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो जब इंसान में वो उकाब का सब मिजाज डेवलप हो जाता है तो फिर स्काई इज द लिमिट, हमें आसमानों में मंजिलें नजर आती हैं। फिर हमें चेंज का फियर नहीं रहता, बल्कि हम चेंज को अटेनमेंट ऑफ प्लेयर के तौर पे लेते हैं और चेंज को बखुशी एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह इकबाल नसीहत करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने आराम के दायरे से बाहर निकले, मेहनत और मुसलसल कोशिश की आदत को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल इसमें इस्तिआरा इस्तेमाल करें कसरे सुल्तानी, यानी कि एक सुल्तान का जो महल है, एक बादशाहों का जो लेविशिंग लाइफस्टाइल है, उनके महल में अगर उनके महल के किसी गुंबद पे या उनके महल की ऊंचाइयों में हमें चूंकि आराम व आसाइश मुहैया होता है तो फिर हमें बाहर निकलने को दिल नहीं करता, मुशक्कत को दिल नहीं करता। और आप देख लीजिए कि जब मुसलमान खुलफा और मुसलमान बादशाहों ने जब वो मेहनत की आदत को छोड़ दिया, जब तलवारबाजी को छोड़ा, जब स्विमिंग को छोड़ा, जब मेहनत और मुशक्कत को छोड़ा, जब वर्जिश को छोड़ा, जब जोहदे मुसलसल की सुन्नत को छोड़ा, तो क्या हुआ? फिर यह कि वो आराम का शिकार हो गए। मुगल सल्तनत का जवाल क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ कि वो उन्होंने महलों में और आरामदेह और पुरतायुश रिहाइशें बना ली और उसके अंदर पुरसकून एनवायरनमेंट में और ताउस और रुबाब को उन्होंने अव्वल रख लिया, जिसे इकबाल ने कहा था कि ताउस और रुबाब को आखिर में रखो। जो रिलैक्सेशन है, जो थोड़ा सा एक फ्री टाइम है, जो रिलैक्सेशन है वो बाद में रखो, पहले जोहदे मुसलसल और अज़्म व हिम्मत को रखो। तो इकबाल ये कहते हैं कि तुम्हारा जो नशेमन है, तुम्हारा मकसद है, तुम्हारा जो पड़ाव है, वो किसी आरामदेह महल में नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा शाहीन की तरह तुम्हारा जो नशेमन है वो पहाड़ों की चट्टानों पर होना चाहिए, पहाड़ों के टॉप पे होना चाहिए। यानी अगेन वही बात के मकसद बुलंद होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमारी परवाज भी बुलंद और अरफा होनी चाहिए। तो इकबाल अफसोस का इजहार करते हैं उन नौजवानों पे। इकबाल का दिल खून के आंसू रोता था, इकबाल कुड़ते थे मिल्लत इस्लामिया की मौजूदा हालत को देखकर। और सैयद सुलेमान नदवी को भी उन्होंने खत में यही लिखा था कि मुसलमानों की और नई नस्ल की मौजूदा हालत को देखकर मेरा दिल कुड़ता है, क्योंकि जो मेरे अफकार हैं, जो मेरे बुनियादी नुकात हैं, जिनकी बुनियाद पर मेरे अफकार की असास खड़ी हुई है, असास की जो एक अफकारे इकबाल की बुनियादी अमारत है, उनकी जो बेस है, जो रूट है, जो असास है, जो उनकी एक ओवरऑल जिसे हम कह सकते हैं कि जो उसकी बुनियादें हैं, इकबाल कहते हैं कि मेरी असास, मेरे अफकार की जो बुनियादें हैं, उनसे नई नस्ल यकसर गाफिल है। तो इकबाल कहते हैं अफसोस, सद अफसोस। इकबाल कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, अफसोस सद अफसोस कि शाही न बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। इकबाल कहते हैं मुझे दुख है कि तू शाहीन नहीं बन सका, तूने फितरत के इशारात को नहीं समझा, तूने
نے جو تجھے اشارے دیے, جو کائنات میں تجھے اشارے ملے کہ تو اے انسان, اے نوجوان, تو اشرف المخلوقات تھا, تو باعث تخلیق کائنات تھا, تو زمین پہ نائب تھا اللہ رب العزت کا, اور تو اپنی جو امامت کرنی تھی تم نے دنیا کی, وہ چھوڑ کر تم نے شاہینی اطوار کو چھوڑ کر تم نے کرگس کے طور و اطوار اور انداز اختیار کر لیے. اس پہ اقبال دکھ اور کرب کا اظہار کرتے تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا میسج ہماری ینگ جنریشن کیری کرے گی اور وہ اقبال کا شاہین بنے گی. اور جو ہمارے سینئرز, جو ہمارے اساتذہ کرام, جو ہمارے والدین جنہوں نے یہ ہمارا ماڈیول سنا, ان سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی شاہین بنیں گے, وہ بھی شاہین کی طرح چینج کو ایکسیپٹ کریں گے اور بدلتے ہوئے حالات میں کے اکارڈنگلی نئے کانسیپٹس کو سیکھیں گے اور نئی نسل کی تربیت میں اپنا کلیدی رول نہ صرف انڈرسٹینڈ کریں گے بلکہ اس رول کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے.